Hello students, welcome to the online classes of Vidya Bhavan School. So students, today's topic it is the sentence from English grammar for class 6th and 7th. So it is the continuity of the same topic. It is a third video of yours. In first sentence I explained you about the sentence, what are its features. After that in the second video we started with the kinds of sentence where we read about the assertive or declarative, which only states in which we use the sentence for which to declare something, and the second one it was the interrogative sentence. So it was used to inquire something or question something, and always that interrogative sentence is started with the helping verb or WH family word and ends with the question mark. So these two sentences or these two kinds of sentences we read in the last class, and today we are going to read about this imperative sentence. So what is an imperative sentence? तो आज हम imperative sentence के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. Imperative, exclamatory और optative sentence, इन तीनों के बारे में आज हम पढ़ेंगे. So स्टार्ट करने से पहले इसकी मीनिंग समझ लेते हैं. What is an imperative sentence? So a sentence that expresses an order. Here, see students, an order, request, suggestion or advice. मीन्स ये वो सेंटेंस है जिसमें क्या होता है, इसमें क्या चीजें इंक्लूड होती है. ऑर्डर, ऑर्डर मीन्स आदेश. रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट मीन्स निवेदन. सजेशन मीन्स सुझाव और एडवाइस मीन्स सलाह. ये सारी चीजें अगर किसी सेंटेंस में है, ओके, इफ एनी सेंटेंस कंटेन्स दिस ऑर्डर, रिक्वेस्ट, ये वर्ड नहीं, means this thing should be there. The request should be done, the suggestion should be done here, or order should be given, or any advice should be given here. If any kinds of sentences which are giving an order, which are requesting, which are suggesting something, or which is advising something, so that type of sentence it is called as imperative sentence. कोई भी वाक्य जो एक order दे रहा है, request कर रहा है, suggest कर रहा है या advice दे रहा है, उस वाक्य को हम क्या बोलेंगे? Imperative sentence. That sentence comes under imperative sentence. So keep it in your mind students. Assertive सिर्फ कुछ declare करता है, कुछ state करता है, कुछ बताता है, and ends with a full stop. Interrogative enquires, question करता है. Imperative क्या है? It orders, request. जब सेंटेंस में ये सारी चीजें होती है, वो सेंटेंस किस में आ जाता है? Imperative में. जैसे कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स देख रहे हैं. Shut the door. टीचर क्या बोलते हैं? आप अगर बोलते हो may I come in ma'am, तो come in and shut the door. That is she is giving you a command, a order. Means वो टीचर क्या कर रही है? आपको ऑर्डर दे रही है. Lend me your pen please. गोल्डन वर्ड, प्लीज, जो हर चीज को इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर देता है. कोई भी गुस्से में भी हो तो प्लीज बोलने पर वो थोड़ा पोलाइट हो जाता है. सो लेंड मी योर पेन प्लीज, तो ये दिस कम्स अंडर रिक्वेस्ट. ऐसे ही यू नीड टू वर्क हार्ड, सजेशन है. टीचर देता है सजेशन कि तुम फेल हो गए बेटा, कोई बात नहीं है, और मेहनत करो, तो आप क्या हो जाओगे? पास हो जाओगे. So this will make you towards or take you towards the success. Third, you must never lie or cheat. ये भी कोई सजेशन है. Don't make a noise. यहाँ पे एडवाइस है कि प्लीज आवाज मत करो ना. So don't open your book. आप अपनी बुक को ओपन मत करो. So these are the few sentences here which shows the order, request, suggestion or advice. So this comes under the imperative sentence. Further, this kind of sentence like assertive sentence, they are further divided into two kinds, that is positive imperative sentence and negative imperative sentence. जैसे कि assertive में ही हम करते हैं not का यूज करके, नेगेटिविटी शो करके, उसी वे में इस सेंटेंस को भी करने हैं. सो यहाँ पे हम कह सकते हैं
ये दो जो है आपके इसी के एग्जाम्पल है, किसके? नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस के। ओके, सो नाउ लेट अस मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, इसमें कोई सडन फीलिंग है ही नहीं, कोई एक्सप्रेशन, एक्स्ट्रा एक्सप्रेशन नहीं है, बट यहाँ पे क्या शो करता है? इट शोज योर इमोशंस। ठीक है, लेट अस रीड नाउ। A sentence that expresses some sudden strong feeling, या तो sudden feeling शो करना, या strong feeling शो करना, या फिर किसी के emotions को जब शो करते हैं कोई सेंटेंस क्या करता है? कोई सडन, कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग को या फिर इमोशंस को शो करता है, उस टाइप के सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? करेक्ट, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। मीन्स ऑल ऑफ सडन आप खड़े हो, पत्थर आके गिर जाता है आपके पास, तो व्हाट विल बी द रिएक्शन? सडनली आप डर जाओगे और उसके साथ साथ कोई ना कोई आवाज भी आएगा, एक्शन के साथ एक आवाज आएगी। सो सच वर्ड्स आई हैव यूज्ड इन दिस आल्सो। सी लुक, अब ये है व्हाट अ ब्यूटीफुल नाइट इट इज, तो इसको हम नॉर्मली नहीं बोलेंगे व्हाट अ ब्यूटीफुल, मीन्स देयर इज एन क्वाइट एक्सप्रेशन, आई शो क्वाइट डिफरेंट एक्सप्रेशन, माय इमोशन, माय फीलिंग टुवर्ड्स दिस night. So what a beautiful night it is. So it ends with the exclamation mark. So note it is, we always use an exclamation mark. This is an exclamation mark. लाइन आती है और एक डॉट आता है नीचे, इसके बाद फुल स्टॉप लगाने की जरूरत नहीं है। इट ऑलवेज एंड्स विद द एक्सक्लेमेशन मार्क, लाइक हाउ इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस इट एंड्स विद द क्वेश्चन मार्क, हियर इट एंड्स विद द एक्सक्लेमेशन मार्क। सो सेकंड एग्जांपल, हाउ ब्लू स्काई लुक्स। हाउ ब्लू स्काई लुक्स ऐसे नहीं बोलते, हाउ ब्लू द स्काई लुक्स। तो एक फील हम यहाँ पे दिखाते हैं, यहाँ पे अलास ओ ज्योति डेड, किसी के बारे में आप सुनते हो कि वो मर गया है, तो क्या फील करते हैं? मर गया। सो इन द सेम वे हियर, अलास पूर ज्योति डेड, दैट ऑब्वियसली कुछ जीतते हैं हम, कोई मैच जीतते हैं कहीं पे भी, मीन्स इफ यू गेट फर्स्ट रैंक ऑल्सो, समथिंग विच मेक्स यू सो हैप्पी, तो क्या करते हो? एंजॉय करते हो, तो क्या बोलते हो? हुर्रा, we won the match, I won the match, I got first rank. So hurrah it is to show a happiness. Oh, that is a gorgeous dress. कोई लड़की आ गई ड्रेस पहन के, सुंदर सा ड्रेस पहन के, सुंदर ब्यूटीफुल ड्रेस में आ गई है, सो उस ड्रेस की तारीफ कर रहे हो, ओह दैट इज अ गॉर्जियस ड्रेस, लुक हाउ ब्यूटीफुल शी इज लुकिंग। तो वहाँ पे हम ऑलवेज, जरूरी नहीं है एट द एंड ऑफ द सेंटेंस ही एक्सक्लेमेटरी साइन को हम यूज करें, कभी कभी जो एक शब्द हमको सडन फील कराता है उसके बाद में हम नॉर्मल बोलते हैं, तो उस वर्ड के बाद में वो एक्सक्लेमेटरी साइन आता है, फिर बाद में वो सेंटेंस नॉर्मल हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें अलास में हमने देखा इसके बाद में है, हुर्रा में हमने देखा इसके बाद में, ओह के बाद में है, बट इन these two sentences ended with the exclamatory mark. So students, you should just understand the feeling what is shown in the sentence. After that you have to place this sign, always keep it in your mind. So this next we will move towards the optative sentence. Earlier this was included in the same, but now it has been excluded or taken as a separate type of sentence. So an optative sentence, a sentence which expresses wish, tamanna, prayer, प्रार्थना, curse, अभिशाप या शाप, hope, आशीर्वाद, hope, आशा, blessings, आशीर्वाद, और keen desire means गहरी इच्छा। ओके, सो यहाँ पे विश, तमन्ना, प्रार्थना, प्रेयर, अभिशाप, कर्स, आशा, हो, आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स, और कीन डिजायर मीन्स गहरी इच्छा। ये जो सेंटेंसेस में ये सारी चीजें होती है, इन सबको शो करते हुए कोई अगर सेंटेंस है तो वो सेंटेंस कौन सी कैटेगरी में आ जाते हैं?
ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं। सो एग्जाम्पल फॉर दिस काइंड ऑफ सेंटेंस, लेट्स सी हियर। आपको भी किसी ने विश किया होगा, आपके लिए किसी ने प्रे भी किया होगा, आपके लिए किसी ने होप दिखाया होगा, ब्लेसिंग्स भी दी होगी, कीन डिजायर्स भी होंगे। Here we will see few examples. So, 1. Long live our Prime Minister. Long live our Prime Minister, and it also ends with the exclamation माँ। मीन्स कुछ अच्छा हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हमारे लिए किया हो तो हम क्या करेंगे, उनके लिए प्रे करेंगे, ब्लेसिंग्स भी देंगे। लॉन्ग लिव आवर प्राइम मिनिस्टर। सेकेंड, May God be kind, prayer, यानी सबके ऊपर भगवान की दया बनी रहे। गुड मॉर्निंग, हैव अ फैंटास्टिक डे। ये सारी चीजें जो आती है वो किस में आती है, वो भी ऑब्जेक्टिव में आती है। तो ऐसे ऐसे आपको 5 सेंटेंसेस और ऐड करते जाना है हर काइंड ऑफ सेंटेंसेस में। तो इसके भी 5 सेंटेंसेस बना देना, एक्सक्लेमेटरी के भी 5, असर्टिव के भी 5, इंट्रोगेटिव के भी 5, इंपेरेटिव के भी 5। दिस यू हैव टू डू इट एज योर होमवर्क। ये नोट्स भी मैं भेजूंगी, उसके साथ आपका होमवर्क भी आ जाएगा। डू इट। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। If you feel anywhere any kind of doubt, please let me know. Don't hesitate, my dear students. Thank you and have a nice day.